آپ عزم آہن فائنانس پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں۔ آج ہم پاکستان سٹاک ایکسچینج یعنی پی ایس ایکس میں لمبی مدت کی سرمایہ کاری کے لیے فنڈامنٹل انالیسز یا بنیادی مالیاتی تجزیے کے کچھ خاص اصولوں پر بات کریں گے۔ جی ہمارے پاس ایک مضمون ہے بنیادی مالیاتی تجزیہ، سڑک کے اشارے پڑھنا، اور ہم اسی کی روشنی میں بات کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی کمپنی کی مالی حالت کو سمجھنا سیکھیں تاکہ سرمایہ کاری کے فیصلے سنی سنائی باتوں پر نہیں بلکہ ٹھوس معلومات پر ہوں۔ بالکل، باخبر فیصلے بہت ضروری ہیں۔ اور اس کے لیے مضمون میں ایک بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ پی ایس ایکس میں سرمایہ کاری کو سمجھیں جیسے لاہور سے اسکردو کا ایک لمبا روڈ ٹرپ ہو۔ دلچسپ انالوجی ہے۔ جی، اور بنیادی تجزیہ جو ہے وہ اس سفر میں سڑک کے نشان پڑھنا، گاڑی کی حالت چیک کرنا، نقشہ دیکھنا، یہ سب ہے۔ تو آج کوشش کریں گے کہ یہ سڑک کے نشان سمجھیں تاکہ سرمایہ کاری کے سفر میں گڑھوں سے بچ سکیں اور ایک آپ کہہ لیں مستحکم مالی منزل تک پہنچیں۔ بہت اچھا زاویہ ہے، چلیں شروع کرتے ہیں۔ چلیں تو سفر شروع کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا چاہیے؟ ایندھن۔ بنیادی تجزیے میں یہ ایندھن ہے ریونیو، یعنی کمپنی کی کل آمدنی جو وہ اپنی چیزیں یا خدمات بیچ کر کماتی ہے۔ جی ہاں۔ اس کے بغیر تو گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ جی جیسے نیسلے ہے یا اینگرو، جو بھی وہ بیچ کر کما رہے ہیں وہ ان کا ریونیو ہے۔ بالکل، اور یہ صرف آپ کہیں کہ ٹینک بھرا ہوا ہے یہ کافی نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایندھن کہاں سے آ رہا ہے اور کتنا مسلسل آ رہا ہے۔ کیا ریونیو ہر سال بڑھ رہا ہے مستقل مزاجی سے، اچھا، یا یہ کبھی بہت اوپر کبھی بہت نیچے؟ دیکھیں، مسلسل بڑھتا ہوا ریونیو ایک قابل اعتماد سپلائی لائن کی طرح ہے، آپ لمبا سفر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ریونیو مستقم نہیں ہے تو یہ ایسے ہے جیسے پتہ نہیں اگلا پیٹرول پمپ کب آئے گا یا وہاں پیٹرول ہوگا بھی یا نہیں۔ صحیح، غیر یقینی صورتحال۔ جی، اور یہ طویل مدتی سفر کے لیے مطلب سرمایہ کاری کے لیے اچھی بات نہیں۔ ٹھیک، تو اگر ریونیو ایندھن ہے تو اگلا سوال، اس ایندھن سے گاڑی چلی کتنی، یعنی اصل کمائی کیا ہوئی؟ بالکل۔ یہ ہمیں لاتا ہے ارننگز، یعنی خالص منافع کی طرف۔ یہ وہ پیسہ ہے جو سارے خرچے، ٹیکس، سود سب نکالنے کے بعد کمپنی کے پاس بچتا ہے۔ جی تو ریونیو بتاتا ہے ٹینک کتنا بھرا، ارننگز بتاتی ہیں کہ گاڑی کتنی ایفیشنٹ ہے، اس ایندھن سے فاصلہ کتنا طے ہوا۔ درست کہا آپ نے، اور یہاں ارننگز کی کوالٹی بھی بہت اہم ہے۔ کیا یہ منافع اصل کاروبار سے آ رہا ہے یا کوئی ایک آدھ چیز بیچ دی اس سے آ گیا؟ یہ اہم نقطہ ہے۔ جی، مسلسل بڑھتی ہوئی آپریٹنگ ارننگز جو بنیادی کام سے آ رہی ہیں وہ ایسے ہیں جیسے آپ موٹر وے پر سکون سے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر منافع کم ہو رہا ہے یا مستقم نہیں ہے تو یہ سمجھے انجن میں گڑبڑ ہے، ایندھن شاید آ رہا ہو، گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی۔ صحیح۔ پی ایس ایکس میں بھی دیکھیں، جو کمپنیاں مستقل اچھی ارننگز دکھاتی ہیں جیسے بینکنگ میں میزان بینک، ایم ای بی ایل اے، یا آئی ٹی میں سسٹمز لمیٹڈ ایس وائی ایس، وہ اکثر لمبی مدت میں اچھا کرتی ہیں۔ ان میں وہ کمپاؤنڈنگ والی بات آ جاتی ہے۔ لیکن صرف منافع بڑھنا دیکھنا ہے یا کچھ اور بھی؟ نہیں، یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ منافع کس قیمت پر آ رہا ہے۔ کیا کمپنی بہت زیادہ قرض تو نہیں لے رہی اس ترقی کے لیے؟ یہ بھی اہم ہے۔ اچھا، تو منافع کی پائیداری اور ذریعہ یہ بھی دیکھنا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور میٹرک پر، ای پی ایس، ارننگز فی شیئر۔ جی اگر ارننگز کل طے شدہ فاصلہ ہے تو ای پی ایس کیا ہوا؟ گاڑی کی مائلیج، یعنی فی لیٹر کتنا چلی۔ ہاں، یہ اچھی مثال ہے۔ ای پی ایس کا مطلب ہے ارننگز فی شیئر، یعنی نیٹ ارننگز کو کل شیئرز کی تعداد پر تقسیم کر دیں تو یہ بتاتا ہے کہ ہر ایک شیئر نے کتنی کمائی کی۔ اور اگر ای پی ایس بڑھ رہا ہو تو اچھا ہے؟ عام طور پر تو اچھا ہی سمجھا جاتا ہے، مطلب کمپنی فی شیئر زیادہ کما رہی ہے یا آپ کی مثال کے مطابق اسی ایندھن میں زیادہ فاصلہ طے کر رہی ہے۔ ٹھیک۔ لیکن یہاں ایک وہ کیا کہتے ہیں باریکی ہے، صرف ای پی ایس کا نمبر نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ یہ بڑھ کیسے رہا ہے۔ کیا اصل کمائی بڑھ رہی ہے اچھا، یا پھر کمپنی نے اپنے شیئر واپس خرید لیے، بائی بیک؟ اس سے شیئرز کم ہو جاتے ہیں تو ای پی ایس خود بخود بڑھ جاتا ہے، بھلے کل منافع اتنا نہ بڑھا ہو۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ جی، اور اس کا الٹ بھی ہے۔ اگر کمپنی نئے شیئرز جاری کرے ڈائلیوشن تو کل منافع شاید بڑھ جائے، لیکن چونکہ شیئر زیادہ ہو گئے تو فی شیئر کمائی یعنی ای پی ایس کم ہو سکتا ہے، جیسے گاڑی میں مسافر زیادہ بٹھا لیں تو
जगह कम हो जाती है। समझ गई। यानी सिर्फ ईपीएस नहीं, कुल कमाई और शेयर्स की तादाद में तब्दीली, ये सब देखना है। बिल्कुल, पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। ठीक है। अगला इंडिकेटर पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। सफर पर है तो स्पीडोमीटर बताता है कितनी तेजी से जा रहे हैं। तो मार्केट में पी रेशियो क्या किरदार अदा करता है? ये कंपनी की मौजूदा शेयर प्राइस को उसकी अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस से कंपेयर करता है। तो क्या ये मार्केट का अंदाजा है कि ये गाड़ी कितनी तेज है या मुस्तकबिल में कितना तेज भागेगी? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लें। पी रेशियो एक तरह से मार्केट का मूड बताता है कंपनी के बारे में। आमतौर पर कम पी का मतलब हो सकता है कि मार्केट समझती है ये गाड़ी जरा सुस्त है या शायद इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी, वैल्यू स्टॉक। और ज्यादा पीई? ज्यादा पीई का मतलब हो सकता है कि मार्केट को लगता है भाई ये तो बड़ी तेज गाड़ी है, मुस्तकबिल में बहुत तरक्की करेगी, ग्रोथ स्टॉक। लेकिन यहाँ एहतियात बहुत जरूरी है। अच्छा, किस तरह की एहतियात? देखें, खास तौर पर पाकिस्तान जैसी मार्केट में पीई की तशरीह सीधी सादी नहीं होती। कभी कम पीई वाली कंपनियां ज्यादा मुस्तहकम निकलती हैं। सिर्फ पीई देखकर फैसला करना ऐसा है जैसे पहाड़ी रास्ते पर सिर्फ स्पीडोमीटर देखकर चलाना। आपको सड़क के मोड़, चढ़ाई, हालात सब देखना है। सही बात है। बहुत ज्यादा पीई वाली कंपनी में पैसा लगाना कभी कभी ऐसा होता है जैसे आप खतरनाक मोड़ पर बहुत तेज जा रहे हो, हादसे का खतरा होता है। और दूसरी तरफ बहुत कम पी कभी वैल्यू ट्रैप भी हो सकता है। यानी कंपनी सस्ती जरूर है मगर इसकी कोई वजह है, कोई मसला है जो हल नहीं हो रहा। यानी पीई को अकेले नहीं देखना, बल्कि पूरी कंपनी, उसके सेक्टर और मार्केट के हालात के साथ मिलाकर देखना है। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट बहुत अहम है। ठीक है। अब बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। आपने लंबे सफर की बात की, तो रास्ते में चाय के छोटे छोटे वक्फे होते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ताजगी आ जाती है। तो सरमायाकारी के सफर में डिविडेंड्स कुछ ऐसे ही हैं। डिविडेंड यील्ड वो सालाना मुनाफा है जो कंपनी शेयर की मौजूदा कीमत के फीसद के तौर पर नकद में शेयर होल्डर्स को देती है। जी, और यहाँ दो तरह की हिकमत अमली नजर आती हैं कंपनियों में। कुछ कंपनियां, जैसे पाकिस्तान में अक्सर पावर सेक्टर वाली या ऑयल एंड गैस वाली, वो आमतौर पर अच्छा डिविडेंड देती हैं। जैसे हबको वगैरह? जी बिल्कुल। तो ये उन सरमायाकारों के लिए अच्छा है जिन्हें बाकायदा आमदनी चाहिए, वो चाय के वक्फे। दूसरी तरफ कई ग्रोथ कंपनियां हैं, खासतौर पर टेक्नोलॉजी या फार्मा में, वो अपना मुनाफा वापस कारोबार में लगा देती हैं ताकि और तेजी से बढ़ सकें। यानी वो चाय के वक्फे छोड़कर मंजिल पर जल्दी पहुंचना चाहती हैं। बिल्कुल, ऐसे समझ लें। दोनों तरीके ठीक हो सकते हैं। ये सरमायाकार की अपनी जरूरत पर है। क्या उसे अभी आराम यानी नकद चाहिए, या वो इंतजार कर सकता है कि गाड़ी यानी सरमायाकारी मजीद आगे बढ़े। लेकिन ये भी तो देखना होगा कि क्या कंपनी वाकई ये चाय के वक्फे दे सकती है। बहुत अहम नुक्ता। क्या कंपनी के पास इतना कैश फ्लो है? क्या वो मुस्तकिल तौर पर डिविडेंड दे सकती है? उसका पे आउट रेशियो क्या है? क्या वो पायदार है? सिर्फ ऊंची यील्ड देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे मैट्रिक्स समझ लिए। रेवेन्यू, अर्निंग्स, ईपीएस, पीई, डिविडेंड। अब असल सवाल, एक अच्छी कंपनी या इस सफर के लिए एक सही गाड़ी कैसे चुने? जी, ये तो बहुत ही अहम है। गाड़ी ही ठीक नहीं तो नक्शा कितना ही अच्छा हो, ईंधन पूरा हो, सफर खराब हो सकता है। बाबू सर टॉप पर गाड़ी खराब हो गई तो? बिल्कुल वहीं फंस गए। तो एक काबिल एतमाद गाड़ी यानी अच्छी कंपनी की कई निशानियां हैं, जिनमें से कुछ पर हमने बात की, जैसे मुस्तहकम और बढ़ता हुआ रेवेन्यू यानी ईंधन आ रहा है, जी। सेहतमंद और पायदार अर्निंग्स, और ईपीएस मतलब इंजन ठीक है और एफिशिएंट है, कर्ज मुनासिब सतह पर हो, गाड़ी ओवरलोडेड ना हो, मैनेजमेंट काबिल और ईमानदार हो यानी ड्राइवर माहिर और जिम्मेदार हो, और कोई ना कोई मुसाबकती बढ़तरी, कोई ऐसी खास बात जो दूसरों के पास नहीं, शायद टर्बो इंजन, और माशी मुश्किलात यानी खराब मौसम में लचक दिखाने की सलाहियत। सही। लेकिन एक बात और, अच्छी कंपनी का तस्वुर सबके लिए एक जैसा नहीं होता। ये वक्त के साथ भी बदलता है और सरमायाकार के अपने रिस्क और मकासद पर भी मुनसर है। ठीक है। तो सिर्फ ये ना पूछें क्या ये गाड़ी तेज है, बल्कि पूछें क्या ये गाड़ी मेरी जरूरत के मुताबिक,
محفूظ तरीके से और लंबी मुद्दत तक चल सकती है। और इस महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए एक और चीज है। रोड एटलस यानी नक्शा। जी, नागुज़ीर है। इस स्कर्दू जैसे लंबे सफर पर निकलने से पहले जाहिर है आप नक्शा देखेंगे, सड़क की हालत, मौसम, कहाँ लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। बगैर नक्शे के तो बस आंखें बंद करके चलना है। सरमायाकारों के लिए कंपनी की सालाना रिपोर्ट बिल्कुल यही काम करती है। बिल्कुल ठीक कहा। सालाना रिपोर्ट सिर्फ नंबर्स का ढेर नहीं है, इसमें मालियाती गोशवारे तो हैं ही, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, जो कंपनी की सेहत का एक्सरे हैं। जी, लेकिन उसके अलावा चेयरमैन का पैगाम, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट, मैनेजमेंट का तज्जिया, ये सब बताता है कि कंपनी आगे क्या सोच रही है, क्या हिकमत अमली है। और वो जो छोटे छोटे नोट्स होते हैं अकाउंट्स के साथ। हाँ, फुट नोट्स, वो अक्सर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इनमें बहुत अहम बातें छुपी होती हैं। ये नक्शे की बारीकियां पढ़ने जैसा है। कंपनी मुनाफा कैसे गिन रही है, असासों की कीमत कैसे लगाई है, क्या जिम्मेदारियां हैं। सही। ये रिपोर्ट दरअसल मैनेजमेंट का सरमायाकारों से एक तफसीली मुकालमा है। इसे समझना अफवाहों पर भरोसा करने से कहीं बेहतर है। जो संजीदा तवील मुद्दती सरमायाकार हैं, वो ये नक्शा जरूर पढ़ते हैं। चलें, अब इन सब नुकात को जोड़ते हैं। हमने देखा कि बुनियादी तज्जिए के ये उसूल हमारे रोड ट्रिप की मिसाल में कैसे फिट होते हैं। रेवेन्यू, गाड़ी का ईंधन, अर्निंग्स, ईंधन से तय होने वाला असल फासला, ईपीएस, गाड़ी की माइलेज या कारकर्दगी, जी। पीई रेशो, स्पीडोमीटर, जो मार्केट की रफ्तार की उम्मीदें दिखाता है। डिविडेंड यील्ड, रास्ते में चाय के वक्फे। एक अच्छी कंपनी, सफर के लिए काबिल एतमाद मुनासिब गाड़ी, और सालाना रिपोर्ट, वो तफसीली रोड एटलस या नक्शा। बिल्कुल। और बुनियादी पैगाम मेरे ख्याल में वही है। जिस तरह अस्करदू का मुश्किल सफर जल्दबाजी या शॉर्टकट से नहीं होता, इसी तरह पीएसएक्स में भी दौलत बनाने का रास्ता वो गरम टिक्स या रातों रात अमीर बनने वाली स्कीमों से नहीं जाता। इसके लिए बुनियादी असूलों को समझना, सब्र, तहकीक और एक मुस्तहकम सोची समझी हिकमत अमली चाहिए। ये सड़क के निशान सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये अमली औजार हैं जो आपको अपना माली सफ़र महफूज और उम्मीद है कामयाब बनाने में मदद दे सकते हैं। ये सफ़र रफ्तार से ज़्यादा पायदारी मांगता है। तो जैसे वो लम्ना रोड ट्रिप सिखाता है कि कामयाबी सिर्फ मंजिल पर पहुंचना नहीं, बल्कि सफ़र को महफूज और पायदार बनाना भी है, उसी तरह पीएसएक्स में सरमायाकारी भी है। ये एक मालियाती कराकरम हाईवे है, कहीं रास्ता हमवार, कहीं ना हमवार। जी बिल्कुल। कभी आप तेज जाएंगे, कभी मुआशी लैंडस्लाइडिंग आएगी, तो रफ्तार कम करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास बुनियादी असूलों की समझ है, आप रेवेन्यू, ईंधन, अर्निंग्स, फासला, ईपीएस, कारकर्दगी, पीई, रफ्तार, डिविडेंड वक्फे देखते रहते हैं और सालाना रिपोर्ट नक्शे को रहनुमा बनाते हैं, तो इम्कान है कि आप न सिर्फ माली मंजिल तक पहुंचेंगे, बल्कि ये सफ़र ज़्यादा महफूज और तजुर्बे से भरपूर होगा। तो अब जब आप सड़क के इशारे पढ़ना जानते हैं, एक सवाल तो बनता है, आप अपने मालियाती सफ़र के लिए कौन सी गाड़ी और नक्शा मुंतखब करेंगे? और क्या आप रास्ते में आने वाले गैर मुतवक्के मोड़ों और चैलेंजेस के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं? अज़्मे आहन फाइनेंस पॉडकास्ट सुनने का शुक्रिया।